जाएगी। वंस यू गेट योर रिपोर्ट देन यू कैन कॉल मी, फिर मैं उसको उसके बाद आपको बताऊंगा। तब तक आप ऐसा करें कि उसको जिंजर और हल्दी सुबह शाम गर्म पानी के साथ देते रहें, जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती रहे और जो छींकें आती है वो कम होना आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। उसके अलावा आप पहले उसका एलर्जी का रिपोर्ट करवाएं प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। तो सभी व्यूवर्स को ये भी याद दिला दूँ कि अगर आपके पास 15 लोगों का से प्लस का कोई ग्रुप है और आप चाहते हैं कि डॉक्टर रोहन आपके शहर में आए, आपकी टाउन या आपकी सिटी में आए, तो वो आपसे भी आकर मिल सकते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए जो शो के एंड में फीडबैक नंबर आएगा वो आप ज़रूर लिख लें। और अभी थोड़ी देर में थर्ड सेगमेंट शुरू होगा शो का, तो उसमें फीडबैक नंबर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉक्टर रोहन से आज ही ऑफर बात करनी है, तो जो नंबर स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ है इस नंबर पर आज रात 9 बजे तक डॉक्टर रोहन से आप बात कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। अपने साथ पेन और पेपर रेडी रखें ब्रेक में, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद हम आपके लिए जो आज का फाइनल सेगमेंट है वो लेके आएंगे, जिसमें डॉक्टर रोहन आपको हेल्थ टिप्स भी देंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। This summer with Leica Mobile, receive calls from 0p per minute when you're traveling to Europe, discovering the Taj Mahal in India, enjoying a Turkish delight in Turkey, or visiting your loved ones in Pakistan. Connection charge of 7p for each roaming call applies. Calls charged at 7p per minute after the first hour. Offer only applies to UK Leica Mobile customers using their UK Leica Mobile SIMs abroad. To get your free SIM and for more information, please visit leicamobile.co.uk. Leica Mobile. Call the world for less. SR Entertainment presents the Sufi legend Hans Raj Hans live in concert on the 29th of July 2012 at the Hammersmith Apollo, London. For tickets, contact ticketmaster.co.uk and chilitickets.com. Contact 07949 382 985 and 07894 500 927 for further information. Throughout the ages, herbal remedies have been used for health and beauty. Here at Nitas Herbal, we use a vast array of natural methods to nurture and protect the well-being of your hair. Nitas Herbal International, your one-stop hair care center for all your hair problems. Call us now for a free consultation at 020-8446-7020. Sometimes sorry makes it all okay. But First for Lawyers are there for when sorry isn't enough. You see, First for Lawyers are experienced personal injury specialists. You keep 100% of your compensation. So find out free if you can make a no-win, no-fee claim. Call First for Lawyers first on 0800 564 2222. श्री साईराम सेंटर, हस्तरेखा, नाम राशि, धन वृद्धि पूजा, नौकरी व्यापार वृद्धि पूजा, काल सर्प दोषक, आरोग्य, संतान प्राप्ति, मंगल दोष या कोई भी प्रकार के कष्ट या समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। पंडित सागरनाथ, नंबर 45 वुडग्रेंज रोड, फॉरेस्ट गेट, लंदन, E78BA। टेलीफोन नंबर 0208 534 9427। Do you run your own business? Are you spending too much on your telecoms provider, utilities or your bank? Since we began over 10 years ago, XLN Business Services has been the small business specialist. We now supply over 130,000 small businesses with fixed lines, business broadband, business mobile, PDQ machines and energy. Switching to XLN could save your business thousands of pounds every year. So call now and start saving on 0800 652 8050. हेलो, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल का लास्ट सेगमेंट है आज के शो का। याद रखिए अपने पास पेन और पेपर प्लीज़ रेडी रखें, क्योंकि इस सेगमेंट में डॉक्टर रोहन आपको हेल्थ टिप्स भी देंगे और इनका फीडबैक नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, तो वो भी आप लिखने के लिए रेडी रहना। तो अभी चलते हैं हम अपने अगले कॉलर के पास। हेलो हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। हाँ, डॉक्टर रोहन के साथ बात करनी है। हाँ बोलिए प्लीज़। हाँ बोलिए। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए। ऊँचे गुजराती में बात कर। हाँ बोलो, गुजराती बोलो। हाँ,
સાહેબ મને શરદી બહુ રહી છે કાયમ અચ્છા અને એના હિસાબે મારી આંખે લીક થઈ ગઈ છે ઉપર એનું કારણ શું? હવે તમને જો સળંગ લાંબા સમયથી શરદી જો રહેતી હોય તો આંખોની અંદર જે ઓપ્ટિક નર્વ હોય છે એ ધીમે ધીમે વીક થવા માંડે, કારણ કે તમારે એ જે આખો એરિયા છે વારંવાર ખેંચાયા કરે શરદીના કારણે, એટલે એ જે એરિયા છે એ તમારો બહુ જ વીક થવા માંડે. તો હું તમને 2-3 વસ્તુ કહું છું, તમે ટીવી પર સાંભળો, તમારો ફોન મૂકીને, એટલે તમને કહું છું. હા, ટીવી પર સાંભળો. હા, એટલે તમે ફોન મૂકી દો અને ટીવી પર સાંભળો. તો હવે જે તમને શરદી રહે છે વારંવાર, એના માટે મેં હમણાં જ એક લેડીને પણ કીધું કે આયુર્વેદમાં હળદર અને મંજિષ્ટાને ભેગા કરીને સવાર સાંજ 1 ચમચી લેવાના. એના કારણે જે આખો ટાઈમ જે તમને શરદી રહે છે એ બ્લડ એલર્જીના કારણે, ઇઓસોનોફિલ કરીને તત્વ આવે છે બ્લડમાં, એના કારણે થતી હોય છે. એટલે સવાર સાંજ 1 તમે ચમચી લો ગરમ પાણી સાથે, તો એ તમારી શરદી ઓછી કરશે. અને નાકમાં તમે જો ઘીના ટીપા રેગ્યુલર નાખશો તો તમારી જે આંખો વીક થઈ ગઈ છે એના માટે બહુ સારું છે. એના સિવાય તમે આયુર્વેદમાં અક્ષી તર્પણ નામની એક ટ્રીટમેન્ટ આવે છે, એ પણ કરાવી શકો, કે જેની અંદર આંખની અંદર અમે ઘીનું અંજન કરીએ છીએ, કાં તો ઘી ભરીએ છીએ, જેના કારણે ત્યાં જેટલી પણ ગરમી હોય એ બધી ખેંચાઈ જાય. ઘરમાં તમે કાકડીના પિતા કરીને ફ્રીજમાં મૂકીને પછી એ કાકડી તમારા આંખ ઉપર મૂકી શકો, જેના કારણે ગરમી બધી ખેંચી લે. પણ શરદી માટે મેં તમને કીધું હળદર અને મંજિષ્ટા વાપરો. અને જો વધારે પડતી શરદી તમને लागती हो तो मैंने आविने मोड़ो प्लीज़. थैंक यू. थैंक यू. तो डॉक्टर रोहन, हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे. इसके लिए कौन सी ऐसे घर के नुस्खे हैं जो हम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो हम कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन जो है वो बहुत ही वाइड और सीवियर कंडीशन है जी, और ये स्पेसिफिकली रिलेटेड है सबकॉन्शियस माइंड से. अगर आदमी सबकॉन्शियस माइंड से अगर वीक हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में घुसता जाता है. तो सबसे पहली चीज़ मैं डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को कहूँगा कि वो मुझे आकर मिले, क्योंकि मैं उनके साथ काउंसलिंग करके मैं रूट कॉज जानने की कोशिश करूँगा कि ये किस कारण वो ऐसा फील कर रहे हैं. अगर रूट कॉज जानने के बाद अगर उस पर काम किया जाए तो दैट विल बी मच बेटर. घर के उपचारों में ऐसा कहा गया है कि जैसे अभी मैंने बताया कि दूध में केसर डालकर, दूध में काली मिर्च डालकर, दूध में अदरक डालकर दिमाग को शांत किया जा सकता है. अच्छा. काम डाउन किया जा सकता है, जिसके कारण नींद अच्छी आती है. नींद अच्छी आती है तो इरिटेशन कम होती है. इरिटेशन कम होती है तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड यू स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ एंगेज्ड. लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है डिप्रेशन में कि अपने आप को कहीं पे भी अकेला ना रखें. अच्छा. अपने आप को एंगेज रखें, कोई ना कोई एक्टिविटी में एंगेज रखें, क्योंकि अकेलेपन के कारण डिप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई होता है. अच्छा. अगर उसमें आप अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अगर बाहर भी जा सकें, अपने आप को किसी चीज़ में बिजी रख सकें. अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कोई चीज़ ढूंढें जिसके कारण अपने आप को आप मेंटली एंगेज करें, नहीं कि सिर्फ फिजिकली. मेंटली एंगेज होना भी बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ सबसे महत्व की है. दवाइयों में तो आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयाँ हैं, ब्राह्मी है, जटामांसी है, शंखपुष्पी है, ये सारी दवाइयाँ तो बहुत हैं आयुर्वेद में, जो डिफरेंट कंडीशन को देखकर डिफरेंटली दी जाती हैं. जी. लेकिन मैं सबसे पहले डिप्रेशन में सारे पेशेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपने आप को घर के अंदर बंद रखने से या अपने आप को स्लगिश या डाउन फील करने से ये उसका कोई इलाज नहीं है. जी. आप बाहर आएँ, डॉक्टर से मिले, मुझसे मिले, प्रैक्टिशनर से मिले, फाइंड आउट करें कि ये क्या हो रहा है. डिप्रेशन आगे जाके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है. सुसाइडल टेंडेंसीज खड़ी कर सकता है. कई बार लोगों का डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दे डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. वो बस चाहते हैं अपने आप को ख़त्म करना. और वो जो स्टेज है वो इट्स अ वेरी वायलेंट स्टेज, जिसके कारण फैमिली यानी जो मदर फादर या ब्रदर सिस्टर्स हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है. एंड दैट्स डेंजरस थिंग टू डू. तो ऐसे कोई भी विचार दिमाग में ना लाएं. अपने आप को हो सके तो स्पिरिचुअली इन्वॉल्व करें, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. अभी हम बात कर रहे थे लाफिंग थेरेपी की. अपने आप को लाफिंग थेरेपी में ज्वाइन करें, जाएं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें. लेकिन यू हैव टू डू सम एफर्ट्स. मैंने देखा है कि डिप्रेशन वाले जो पेशेंट हैं, अगर उनके फैमिली वाले अगर एफर्ट करते हैं तो कुछ नहीं होता. डिप्रेशन वाले पेशेंट को खुद को एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है. उनको बाहर आना ज़रूरी है, उनको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उनको एंगेज होना ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना ज़रूरी है. आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई शौक है तो वो 6 महीने 12 महीने तक रह सकता है दिमाग के ऊपर, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक कैरी ऑन ना करें, क्योंकि वो आपको नहीं कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी ख़त्म कर सकता है. तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि डिप्रेशन को आपके ऊपर डोमिनेट ना होने दें, आप उसके ऊपर डोमिनेट हो जाएं.
जी। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, जब हम देखते हैं काफ़ी बच्चे सोशल नेटवर्क वर्किंग साइट्स पर रहते हैं या वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, क्या वो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे? मैं समझता हूँ कि किसी भी एक्टिविटी में ओवर इंडल्जेंस भी एक जी। डिप्रेशन का ही कारण है, क्योंकि जब कोई चीज़ से आपका एडिक्शन हो जाए तो दैट्स अ जी। डिप्रेशन एज वेल, ओके। क्योंकि आप वहाँ पे सेफ फील करते हैं और आप अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी पॉजिटिव जी। एनर्जी आप उसमें वेस्ट करते हैं। हाँ, हाँ। तो वो एक प्रकार से डिप्रेशन ही माना जाता है, बिकॉज इट्स यू आर एडिक्टेड टू इट। ओके। मैंने अभी भी कहा कि हाँ, किसी हाँ। भी चीज़ को अपने ऊपर डोमिनेट ना होने दें। जी। अगर आप गोल्फ खेलते हैं तो गोल्फ खेलें, वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम खेलें, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स जी, रखें जी। कि आप उसके साथ और भी एक्टिविटीज़ कर सकें। जी। तो अभी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते Sure. हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। अच्छा, प्रश्न डॉक्टर से भी पूछना था, मैं ये आपके साथ बातें करनी है। जब भी हम जो प्रोग्राम देखते हैं ना, तो आपका आवाज़ और डॉक्टर का आवाज़ यहाँ कुछ भी नहीं आता। अच्छा। ओके। बहुत कम, इतना क्लियर आवाज़ नहीं होता कि अगर हमें बहुत दिक्कत होती है डॉक्टर का आवाज़ सुनने में। अगर कोई कॉलर ने भी फ़ोन किया, वो तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता। अच्छा। और ये हमें बहुत तकलीफ पड़ रही है। तो ये क्या चक्कर है कि अभी ब्रेक में इसका आवाज़ बहुत अच्छा आ रहा था, तो हमें वॉल्यूम डाउन करना पड़ा। जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो फिर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। तो ये और जो वॉल्यूम की क्वालिटी है ना, बिल्कुल ख़राब है। वो हम टेक्निकल टीम से बात करते हैं अभी, एंड विल फाइंड आउट व्हाट इज द इशू प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हाँ डॉक्टर रोहन, हम बात कर रहे थे आज के शो में डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन के बहुत अलग अलग डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, वो तो आपने हमें बता दिए, मगर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है कि जहाँ से वापस मुड़ना शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है? देखिए, डिप्रेशन में मैं समझता हूँ कि मेरे पास सीवियर कंडीशन से लेके माइल्ड कंडीशन वाले सारे पेशेंट्स आते हैं। जी। इसमें ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता कि आप वापस नहीं आ सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल पावर। जी। कई ऐसे डिप्रेशन के मेरे पास पेशेंट हैं जो 15-15, 20-20 सालों से दवाई ले रहे हैं, एंटी डिप्रेशंस, और मैंने उनकी दवाइयाँ 6-6 महीनों में बंद करवाई हैं। जी। बट द विल पावर इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं उनके लिए एक प्रोग्राम तैयार करता हूँ जिसके अंदर उनको रेगुलर मेरे पास मंथ में 2 या 3 बार ट्रीटमेंट लेना आना पड़ता है। घर पे मैं उनको बताता हूँ कि अपने आप को मेडिटेशन, योगा में एंगेज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब चीज़ों में एंगेज करें। तो और साथ साथ में मेरी मेडिकेशन लेके मेडिकल मेडिसिन को धीरे धीरे करके विड्रॉ करें। अच्छा। तो ये अगर वो करते हैं तो आई कैन सी द ह्यूज डिफरेंस एंड दे फील दैट। तो मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन ऐसी बीमारी है कि उसमें अगर खुद ही मैंने बताया जैसे कि जी। पेशेंट अगर एफर्ट करना चाहे तो वो देने आप की बाहर आ बात। सकता है। हाँ। बिल्कुल। तो इसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी Sure. चलते कॉलर के पास। हेलो। हेलो। हाय। हाँ बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ हेलो, आई एम हियरिंग यस बोलिए प्लीज। यू। I've got problem with the sexual problem now. Can you tell me? You can come and see me for that because I cannot discuss anything sexual problem on the television. So you can get my number, feedback number, and come and see me, please. Thank you. थैंक यू। What office can tell me? My office is in my clinic is in Hounslow, so you can definitely call me and come and see me. Hello, what? Can you give a number? You can get my feedback number at the end of the show. Thank you. थैंक यू। तो सभी व्यूअर्स को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप डॉक्टर रोहन से ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, अगर कुछ ऐसी बात है शायद आप ऑन एयर नहीं डिस्कस कर सकते, तो ऑफ एयर बात करना चाहते हैं तो आज रात 9 बजे तक इसी नंबर पर डॉक्टर रोहन आपकी कॉल्स लेंगे। और बहुत ही जल्दी शो के लास्ट 5 मिनट्स में डॉक्टर रोहन का फीडबैक नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आएगा, वो भी आप नोट कर लें, लिख लें। उस नंबर पर 7 डेज अ वीक आप डॉक्टर रोहन से बात कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने अगले कॉलर के पास। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था डॉक्टर रोहन से। मेरे को ना ये पूछना है कि अभी रिसेंटली मेरे को पता लगा है कि मेरे को डायबिटीज़ है। ओके। तो उसको मैं कैसे अवॉइड करूँ मेडिसिन वगैरह? देखिए, आपको डायबिटीज़ ये प्री डायबिटिक कंडीशन है या डायबिटीज़ कंफर्म हुआ है? सॉरी? ये प्री डायबिटिक कंडीशन है या डायबिटीज़ कंफर्म हुआ है? कंफर्म हुई है लास्ट। ओके, तो आप टेलीविज़न पे सुनिए, मैं बताता हूँ। जनरली डायबिटीज़ के इनिशियल स्टेज में उसको अच्छी तरह से कंट्रोल या तो क्योर किया जा सकता है। अगर जैसे आपने बताया कि ये इनिशियल स्टेज है,
तो आयुर्वेद में मेष घन करके एक दवाई आती है, वो सुबह शाम आप लेना शुरू कर दें, जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर को डाइजेस्ट करती है और उसको ब्लड में मिक्स नहीं होना देती। तो वो सुबह शाम एक एक ले सकते हैं। उसके साथ पुनर्नवा लें, क्योंकि वो अपान वायु यानी कि पेंक्रियास के आसपास की जो कंट्रोल डाइजेशन कंट्रोल करती है उसको वो कंट्रोल करती है। तो पुनर्नवा सुबह शाम एक एक लेना शुरू करें। और रात को वीक में 3 बार त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ 1-1 चम्मच लें, जिसके कारण जो टॉक्सिसिटी बॉडी में जमा हो रही है, जो शुगर लेवल को बढ़ा सकती है या तो डाइजेशन को स्लगिश कर सकती है, तो वो कम हो जाएगी। तो 1 चम्मच गर्म पानी के साथ वीक में 3 बार त्रिफला लें, मेषघन सुबह शाम 1-1 और पुनर्नवा सुबह शाम 1-1। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, जैसे आपने अभी भी कहा कि डिप्रेशन बहुत सीवियर भी हो सकता है, तो अगर कोई आपसे आपके क्लिनिक में मिलने आना चाहे डिप्रेशन के लिए, तो उनको कौन कौन सी रिपोर्ट्स अपने साथ लेकर आनी होंगी? देखिए, डिप्रेशन में जनरली डॉक्टर्स एक असेसमेंट फॉर्म बनाते हैं जी। असेसमेंट मूड असेसमेंट फॉर्म, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब ये होता है लो मूड। जी। तो जनरली वो जितने भी आपके डिप्रेशन के पैनिक अटैक्स है, तो डिप्रेशन के जो अटैक्स आते हैं वो रेगुलर वो नोट डाउन करते हैं, अगर आप किसी के ऑब्जर्वेशन में है तो। अदरवाइज जो मैं मेडिकल हिस्ट्री जो लेता हूँ उसमें फैमिली मुझे बताती है कि कब कब कितने टाइम पे ये अटैक्स आते हैं। तो मैं एक असेसमेंट करता हूँ और उसके बाद मुझे पता चलता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इट मीन्स दैट पेशेंट इज सीवियर इन सीवियर कंडीशन। अगर वो फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब है कि अगर ओकेजनली आती है वो अटैक्स होते हैं उनको, तो देन वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द रीजन एंड हाउ टू क्योर दैट। जी, तो इसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी चलते कॉलर के पास। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर हमसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, मेरे ना मम्मी जी हैं, उनके ना गले पे ना बहुत सा रैश हो जाता है, रेड कलर का, नो स्पॉट्स वगैरह नहीं है, जस्ट रैश, वो उसमें इच्छी बहुत होती है। तो उसके लिए पूछना था, ब्लड टेस्ट वगैरह उन्होंने करवाए हैं पर उससे वो सब ठीक है। ओके। अब गले के आसपास, अब टेलीविज़न पे सुनिए, मैं बताता हूँ, गले के आसपास रैश निकलना वो हाई हीट इन द सिस्टम या तो एसिड इन द सिस्टम माना जाता है। जनरली क्या होता है कि जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, गला, एल्बो, नीज़ के पीछे के साइड पर जहाँ पे सर्कुलेशन सबसे कम होती है वहीं पर ये रैशेस होते हैं। ये या तो एलर्जी के कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने कहा ब्लड रिपोर्ट इज़ फाइन, अगर आपके पास एलर्जी का रिपोर्ट है तो वो भी आप मेरे पास लेके आ सकती हैं। आई वुड लाइक टू सी योर मदर द कंडीशन। जनरली ये जो स्किन रैशेस होते हैं उसका कारण डर्मेटाइटिस या तो ड्राई एक्जिमा हो सकता है, और ये अगर ध्यान ना रखा जाए तो आगे जाके काफ़ी बढ़ सकता है। तो आयुर्वेद में तो उसमें एक खदीर और मंजिष्ठा, ये 2 दवाइयाँ आप अगर मिल सके तो तुरंत शुरू कर दें। मैं फिर से नाम बता रहा हूँ, खदीर और मंजिष्ठा, ये दोनों ब्लड प्योरीफायर और इम्यूनो बूस्टर हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी उनको रैशेस या ड्राइनेस या डर्मेटाइटिस हुआ है, रैशेस हो रहे हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा करेगी। और अजवाइन गर्म पानी के साथ सुबह शाम उनको देना शुरू करेंगे, जिसके कारण वो डाइजेशन अच्छा हो, तो गर्मी ज़्यादा बढ़े नहीं, इतना करें। और अगर कंडीशन सीवियर है तो मुझे आके मिलें। थैंक यू। थैंक यू। तो सभी व्यूअर्स को याद दिला दूँ, इस वक्त स्क्रीन के नीचे डॉक्टर रोहन के फीडबैक डिटेल्स लिखे आ रहे हैं। इस फीडबैक नंबर पर आप 7 डेज अ वीक डॉक्टर रोहन से बात कर सकते हैं। जो रेड स्ट्रिप पर नंबर है, अभी शो के लिए हमारे पास बहुत कम समय रह गया, मगर अगर आप डॉक्टर रोहन से आज ही बात करना चाहते हैं ऑफ एयर, तो जो रेड स्ट्रिप पर नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर पर आप डॉक्टर रोहन से आज रात 9 बजे तक बात कर सकते हैं। सीधा चलते हैं हम अपने अगले कॉलर के पास। हेलो हेलो। तो हाँ जी डॉक्टर रोहन, अभी हमारे पास बहुत कम समय रह गया शो के लिए। आप हमें बता दें कि डिप्रेशन के लिए कौन से ऐसे हेल्थ टिप्स हैं जिसको हमको फॉलो करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हों। ओके। डिप्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को किसी भी कंडीशन में या सर्कमस्टेंसेस में ऐसा ना समझें कि डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता। डिप्रेशन ठीक करना आपके हाथ में है। तो आप सबसे पहले ये तय करें कि आपको कैसे इसमें से बाहर आना है। दूसरी बात, आप मुझे आकर मिलें, मैं आपके लिए प्रोग्राम बनाऊंगा। जो भी चीज़ें हैं आपकी इमोशनल शॉक या फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस, जो भी रीजंस हैं उसको हम फाइंड आउट करेंगे, रूट कॉज पर वर्क करेंगे और हम उसको एरिडिकेट यानी कि नाबूद करने की कोशिश करेंगे। घर के अंदर आप ऐसा करें कि दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। कोई भी वायलेंट चीज़ या तो वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स या तो कोई भी ऐसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जिसके कारण आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, बिकॉज डिप्रेशन और एग्रेशन अगर दोनों साथ मिल जाए तो वो काफ़ी वायलेंट हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, और आप अपने आप को भी इंजरी कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखें। चौथी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने बताया कि दूध के अंदर अगर काली मिर्च और अदरक या दूध के अंदर हल्दी और केसर
जहाँ के अगर दिन में 1 या 2 बार पिया जाए तो वो दिमाग को शांत करता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को बढ़ाता है दिमाग के अंदर। आयुर्वेद में ब्राह्मी और जटामांसी करके दवाइयाँ हैं। ब्राह्मी जो है वो न्यूरोटॉनिक मानी गई है, वो भी दिमाग को शांत करती है, तो रात को सोने के टाइम पे आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं। जटामांसी है उसका चूर्ण ले सकते हैं सुबह शाम गर्म पानी या तो दूध के साथ। इसके अलावा आयुर्वेद में कहा गया है कि जितना भी हो सके इतनी बॉडी को काम डाउन करने की कोशिश करें। शतावरी जो है वो बॉडी को काम डाउन करती है, तो उसका चूर्ण सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं, ये वो भी एक न्यूरोटॉनिक मानी गई है। लेकिन अगर आप अपने आप को एंगेज रखेंगे फिजिकली मेंटली, तो डिप्रेशन आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप खाली बैठे हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, लाफिंग थेरेपी, ये सब चीज़ों का सहारा लें। जितना हो सके अपने आप को एंगेज रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रोहन, थैंक यू सो मच आज के शो के लिए। सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा और उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं आप सबने हेल्थ टिप्स भी लिख ली होंगी। सबको याद दिला दो कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर रोहन आपके टाउन में आए या आपकी सिटी में आए तो ये आपके टाउन या सिटी में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप है 15+ लोगों का तो जो फीडबैक नंबर है उस पर आप डॉक्टर रोहन को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इनके साथ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कि ये आपके पास आएँ, आपसे मिलने आएँ। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन अपने डॉक्टर रोहन से बात करनी है तो जो रेड स्ट्रिप पर नंबर लिखा आ रहा है इसी नंबर पर आज रात 9 बजे तक डॉक्टर रोहन डायरेक्टली आपके फ़ोन कॉल्स लेंगे और आपसे बात करेंगे। नहीं तो जो फीडबैक नंबर लिखा आ रहा है इस नंबर पर 7 डेज अ वीक डॉक्टर रोहन अवेलेबल हैं और ये आपसे बातें करेंगे। तो डॉक्टर रोहन आज का टॉपिक तो डिप्रेशन के बारे में था। नेक्स्ट वीक हम स्किन प्रॉब्लम्स में सोराइसिस के बारे में बात करेंगे। तो सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों को अफेक्ट करती है, हर एज ग्रुप को। तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो आप सबको कौन सी टिप्स देना चाहते हैं अभी से कि वो कौन सी प्रिपरेशन अपने साथ रखे? पेन और पेपर तो डेफिनेटली देखिए ध्यान से सुने, मैं जो भी कहता हूँ। कई बार लोग गलत चीज़ें सुन के गलत चीज़ यूज़ करते हैं तो फिर उसका प्रॉब्लम होता है बॉडी पर। लेकिन सोराइसिस इज़ अ वेरी सीवियर कंडीशन इन दिस कंट्री। आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स, तो मैंने सोचा कि मैं सोराइसिस पर नेक्स्ट टाइम बात करूँ। जी, तो उससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। मगर सबको ये भी चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशन सिवियर है तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर हो सकता है तो डॉक्टर रोहन से डायरेक्टली आकर मिलने आए, उनके क्लिनिक में मिले उनसे, तो वो आपकी और भी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। आज के शो के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, सोराइसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। SR Entertainment presents the Sufi legend Hans Raj Hans live in concert on the 29th of July 2012 at the Hammersmith Apollo, London. For tickets, contact ticketmaster.co.uk and chilitickets.com. Contact 07949 382 985 and 07894 500 927 for further information. Leica Mobile. Leica Mobile's new Pakistan Value Pack gives you 1000 minutes monthly to Pakistan landlines or mobiles for just £20. To get this brilliant promotion, enter the highlighted code from your Leica Mobile number and press send. You can also choose the brilliant weekly pack and get 200 minutes to Pakistan landlines or mobiles for just £5. To get this brilliant promotion, enter the highlighted code from your Leica Mobile number and press send. For more information or to get your free SIM, visit leicamobile.co.uk. Leica Mobile. Call the world for less. Hi, this is Amitabh Bachchan. You're watching me on MATV.
साथ है, हैरानगी की बात है, रवानगी कहाँ की है कहो ना। मुड़ने लगे हैं रास्ते, जुड़ने लगे हैं रास्ते, देखो हमारे वास्ते चलो ना। भौरे देखो हम दीवानों को, मस्ती में मस्तानों को। कैसी सुहानी शाम है, बस पल दो पल आराम है, फिर कितने सारे काम है, अपना रखवाला राम है। भौरे देखो हम दीवानों को। रुकते चलते ही आ जाएगी, मंजिल हमसे बच के ना जाएगी। जैसे दरियाओं को किनारे मिलते हैं चंदा को सितारे। आंखों को मिलते हैं जैसे नजारे, कलियों को मिलते हैं भौरे ये प्यारे। कश्ती को मिलते हैं पानी के धारे, नाजुक दिलों को सहारे। बागों को मिलती है जैसे बहारे, पाएंगे हम भी ठिकाने। जब हम चले हैं साथ साथ, अब सोचने की क्या है बात, चल चल के रास्ते हमको ही पुकारे। तो भंवरे देखो हम दीवानों को, दीवानों को, मस्ती में मस्तानों को, अपनी ही धुन में चले हैं, दुनिया से क्या लेना है क्या लेना है। भंवरे देखो हम दीवानों को, दीवानों को, मस्ती में मस्तानों को। You're watching MATV, your channel of choice. किसी का भी दिल ना दुखाना कभी, क्या पता गैर भी काम आ जाए कब। दीन दुखियों की सेवा हमेशा तू कर, जाने किस रूप में राम मिल जाए कब, जाने किस रूप में राम मिल जाए कब। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने गीता जी के केवल एक श्लोक सुना था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वती संजय। केवल एक श्लोक सुना, उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया, दक्षिणार्पण की, सुस्वादिष्ट भोजन कराया। बोले महाराज मुझे 2-4 महीने चाहिए अध्ययन करने के लिए, मैं इस श्लोक के मर्म में जाना चाहती हूँ।